اور افکار تازہ اس کی وضاحت ہو چکی کہ افکار نیا جہان تشکیل دینے کے لیے نئے خیالات اور نیا فکر چاہیے اگر ہمیں نئی دنیا چاہیے. اور آج ہم میں اور طاہرہ عبداللہ پاکستان کی مایاناز وومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ وومن رائٹ ایکٹیوسٹ کہتے ہوئے بھی طاہرہ عبداللہ کا سامنے جب بات کرتے ہیں تو سوچ سمجھ کر بات کرتے ہیں کہ کہیں ہمارے کسی لفظ سے، کیونکہ نہ صرف یہ وہ ہماری گفتگو سے بھی جو ہے کہیں پر بھی کوئی غلط چیز آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، آج ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے بریکنگ دا سائیکل، جینڈر، پاور اور وائلنس. دائرے کو توڑنا، صرف طاقت اور تشدد. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عورتوں کا استحصال، عورتوں پہ ظلم یا عورتوں کی سماج کے اندر جو ماتحتی ہے، یہ جو سائیکل ہے اس میں صرف کی تشکیل، اس کے بعد طاقت کا استعمال اور اس کے بعد تشدد، یہ عورت کی زندگی کے گرد گھومتا ایک دائرہ ہے جو عورت کی سوچ، عورت کے وجود اور عورت کے جسم کو کنٹرول کرتا ہے. اگر آپ لوگوں میں سے جو لوگ دلچسپی رکھتے ہیں وہ برائے کرم ہال میں موجود رہیں، اور جو نہیں رکھتے وہ برائے کرم نہ موجود. جی، تو یہ بات کر رہے تھے کہ ہم کہ عورت کا ذہن، عورت کا وجود اور عورت کا جسم وہ کنٹرول ہوتا ہے اس دائرے سے جس کو ہم نے نام دیا ہے کہ اس میں ایک جو ہے فیکٹر ہے، ایک جو ہے عنصر ہے، وہ ہے اس کا صرف کا، پھر طاقت کا اور پھر تشدد کا. طاہرہ سے بھی بات کرتے ہیں، ہم آپ سے بھی بات کریں گے، لیکن یہ ہے کہ طاہرہ یہ صرف کی جو تشکیل ہوتی ہے جس سے عورت کا سماجی وجود کی اور عورت کی اپنی تشکیل ہوتی ہے، اس میں یہ صرف کا کیا کردار ہے، صرف ہوتی کیا ہے، تھوڑا سا اس پہ آپ اگر روشنی ڈالیں. محترمہ پروفیسر امر سندھو صاحبہ نے پتہ نہیں شروع میں کیا کچھ کہا، لیکن آپ لوگ جو نہیں جانتے ان کو، مجھے نہیں معلوم کہ حیدرآباد شہر میں اور جامشورو شہر میں اور ڈسٹرکٹ میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ امر سندھو صاحبہ کو نہیں جانتے، وہ ہاتھ کھڑے کریں. میں تو جانتی ہوں، میں ان کو جانتی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ یہ کیا چیز ہے. بڑے بڑے کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، آئی جی پولیس، ڈی آئی جی پولیس، اے آئی جی پولیس تھک تھک کانپتے ہیں ان کا نام سن کر. یہ تھک تھک کانپتے ہیں. پروفیسر وسیم مسرت صاحبہ یہاں ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں، ان کے نام سے بھی تھک تھک کانپتے ہیں. امر صاحبہ نے موضوع اٹھایا. محترم جناب دارپور صاحب، آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ. گھنی مہربانی تمام جی، گھنی مہربانی، گھنی مہربانی. بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے کہ آپ تشریف لائیں. ڈاکٹر ریاض صاحب، ڈاکٹر بنگش صاحب، تمام شرکائے پینلز، کچھ لوگ تو گفتگو میں مصروف ہیں، کوئی بات نہیں، وہ ریکارڈنگ دیکھ لیں گے بعد میں شاید. ہمارے تمام کراچی کے، حیدرآباد کے سب ساتھی، لاہور کے، اسلام آباد کے تمام ساتھی، کروڑوں صاحب آپ سے مخاطب. سب سے پہلے آپ میں سے کوئی ہاتھ کھڑا کریں اگر اس سوال میں دلچسپی ہے. امر صاحبہ نے پوچھا کہ یہ
सिर्फ क्या चीज होती है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ ये जिन्स क्या चीज होती है, और जिन्स और सिर्फ में तफरीक क्या है? कोई है तफरीक या नहीं है? एनीवन? सिर्फ और जिन्स एक ही चीज होती है? डॉक्टर साहब आई नो यू। अच्छा, तो सिर्फ और जिन्स का फर्क कोई नहीं जानता। आप बोले, आप बोले। अच्छा, अगर आप नहीं जानते तो हम आपको बता देते हैं और थोड़ा सा हम वजाहत करते जाए कि देखिए ये जो हम बात कर रहे हैं, एक्चुअली हम बात वही कर रहे हैं कि कुछ समझा जाए, कुछ समझाया जाए, कुछ हमारी समझ आता होगा, कुछ आपका एक्सपीरियंस होगा जो हमें नहीं पता होगा। जिन्स और सिर्फ का फर्क ये है कि जो जिन्स है वो बायोलॉजिकल है, कि आपकी बायोलॉजी कैसे, एक मर्द है एक औरत है, इसकी बायोलॉजी मुख्तलिफ है। अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं। हाँ, उसको अंग्रेजी में सेक्स कहते हैं। तो वो हमारी मुख्तलिफ है, हमारे बॉडी ऑर्गन्स मुख्तलिफ हो गए और हमारा जिस्म एक दूसरे से मुख्तलिफ। अब आपने सिर्फ जेंडर क्या है? जेंडर एक्चुअली ये है कि जेंडर कोई हमारी कोई बॉडी के अंदर छुपी हुई कोई चीज नहीं है। जेंडर एक समाजी किरदार की तश्कील है, समाज ने हमें दी हुई है। ये कोई हमारी बॉडी के अंदर नहीं है, लेकिन समाज ने, जेंडर ने, उन्होंने एक औरत बनाया है, एक मर्द बनाया है जो हयातियाती नहीं है, जो बायोलॉजिकल नहीं है, सोशल है। और समाज चूंकि इंसान बनाता है तो उस समाज के अंदर जो औरत की तश्कील होती है, जो औरत को औरत बनाती है, जो औरत को कमजोर या जो कुछ बनाती है, मर्द को जिस तरह से हम उनकी बात करते हैं, जो उसकी मैस्कुलिनिटी के बारे में, मर्दानगी के बारे में, औरत के बारे में अगर बात करें तो औरत की निसाइयत के बारे में कि औरत जो है वो अच्छी। अच्छा, फिर इस पे हम और आगे बात करेंगे कि औरत के इसके जेंडर के तस्वर के अंदर भी बहुत सारी तहें छुपी हुई है जो औरत के इस जो मौजूदा सूरत हाल के अंदर, जब हम बार बार ये हमारी बात तो आसान कर दी शीमा जी ने कि बार बार जो है हम बराबरी की बात करते हैं और हम इंसानी रुतबे वाली बात करते हैं। हम कह सकते हैं कि बदकिस्मती के साथ हम इस 21वीं सदी के अंदर, हम जिस समाज के अंदर रह रहे हैं, उस समाज के अंदर औरत अभी इंसान तस्वर नहीं की जाती, और अगर इंसान तस्वर की भी जाती है तो उसको आधा इंसान या उसको जो है आदि जो है वो समझी जाती है। तो ये तश्कील समाज करता है। आपको बताएगी जो है तारा कि वो समाज किस तरह से तश्कील करता है सिर्फ की। ये बताइए कितने कितने सिर्फ होते हैं दुनिया में? जेंडर्स कितने हैं? हाथ उठाए वो लोग जो कि कहते हैं 2 हैं। हाथ उठाए वो लोग जो कि कहते हैं 3 हैं। शाबाश, शाबाश। मेल, फीमेल एंड ट्रांसजेंडर, इंटरसेक्स, अपने लिए ताली बजा लें, अपने लिए ताली बजा लें। शाबाश, वेल डन। उधर ज्यादा हाथ इधर भी थे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। ये कोई इंडिया पाकिस्तान का मैच नहीं हो रहा कि इधर और इधर में क्या है। उसके बारे में तो जितनी कम बात की जाए बेहतर है। शर्म से बुरा हाल। देखिए, प्रोफेसर अमर साहिबा ने गुफ्तगू की सिर्फ की और जेंडर की और सेक्स की, जिन्स की और सिर्फ की। मैं जरा सा आगे बढ़ाना चाह रही हूं और वो ये है, एक बला है जिसका नाम है पेट्रियार्की। मुझे पता है कि ज्यादातर यहाँ सिंधी स्पीकिंग होंगे, लेकिन उर्दू में मुझे बताएं कि पेट्रियार्की को उर्दू में क्या कहते हैं? सिंधी में भी नहीं कहते। सिंधी में भी नहीं। दोबारा ऊंची खड़े होकर आवाज। आप न्यू
खड़े हो। शाबाश शाबाश, इनके लिए भी एक ताली बजाइए। लेकिन ये पितर शाही किस बला का नाम है? इसका मतलब क्या होता है? पितर बाप को कहते हैं और शाही शाह को कहते हैं, रूलर। एनीवन? बिल्कुल मेल मैं चाहते हम मर्द को जो है वो सरबराह समझे। हम नहीं समझे, हम नहीं मत समझे, हम नहीं समझते। हम नहीं समझते। मर्द अपने आप को कंट्रोलर, रूलर, पावरफुल, मेरा इक्तिदार, एग्जैक्टली मैं कंट्रोल करता हूँ। सही है। तो ये 2026 में काबिले कबूल है कि नहीं है? हाथ खड़ा करें वो लोग जो कहते हैं काबिले कबूल है। मैंने कहा था हाथ वो लोग खड़ा करें जो समझते हैं कि बिदअतशाही निजाम काबिले कबूल है। किसी ने नहीं हाथ खड़ा किया। माय गुडनेस, आप लोग दिल से मान रहे हैं या पॉलिटिकली करेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं? दिल से मान रहे हैं? अपने लिए ओवैस तौहीद साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इनको अभी तक वो दिन नहीं भूला। 20 जनवरी 20 जनवरी 2020 आप और मैं मैदान में उतरे थे इकट्ठे, और हमने एक बिदअतशाही शैतान को, एक बिदअतशाही शैतान को, मोहतरम जनाब ओवैस तौहीद साहब और एक अदनासी ताहिरा अब्दुल्ला, हमने उसको ठिकाने लगा दिया था बगैर बंदूक के। हम दोनों प्रोफेसर अमर सिंधु साहिबा और ताहिरा अब्दुल्ला सिर्फ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स ही नहीं हैं, जेंडर पे सिर्फ पता नहीं क्या क्या गुफ्तगू नहीं करते, हम पीस एक्टिविस्ट भी हैं। तो जनाब ओवैस तौहीद साहब ने और मैंने ये फैसला कर लिया कि कोई बंदूक नहीं हम लेकर आएंगे, इस शैतान शख्स को हमने अल्फाज की मार देनी है और कोई हम नहीं। तो थैंक यू ओवैस तौहीद साहब, आपको ये बात आज भी याद है। आप उसका नाम तो बताइए। ये तो बड़ी इन्फॉर्म्ड और ये यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है, उसका नाम बताने की अब कोई कतई जरूरत बाकी रह गई है, सब जानते हैं कौन है, सब जानते हैं, हर एवरीवन नोज हिम। देखिए, अगर शर और शैतानियत का नाम ले तो उसको हवा मिलती है, उसको दवाम मिलता है। I will not dignify that evil monster by taking his name. Evil monster. अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं पावर और कंट्रोल के ऊपर। ये किसने लिख दिया, किसने कह दिया कि किसी एक को किसी दूसरे पर पावर और कंट्रोल और इख्तियार हासिल है, फौकियत, ऊपर से सुपीरियरिटी हासिल है? ये कहाँ है, ये क्यों है, ये किसने कहा और हम में से किसने इसको मान लिया? हम नहीं मानेंगे। आप इस पे कुछ कहेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? पावर की जब बात होती है, पावर का मतलब है कि ताकत, और ताकत एक खास तौर पर हम जब इस्तेमाल करते हैं औरत के उस रेफरेंस में, तो वो ये है कि कंट्रोल जी, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए, उसमें जो जिसको हम ताकत कह रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि जिस तरह से इन्होंने कहा कि वो ताकत जो है वो कोई बंदूक की ताकत हो, वो कोई और ताकत हो। ताकत 2-3
सकती है, जिसको हम कहते हैं कि एक समाजी ताकत, आपका रुतबा क्या है, उस ताकत से कंट्रोल करते हैं अपने से कमजोर लोगों को, अपने से कमजोर जिन्स को। फिर एक जो ताकत जो है वो ताकत हम जिसको हम कहते हैं कि सियासी तौर पर उस ताकत से अवाम को, लोगों को कंट्रोल किया जाता है। फिर हम देखते हैं एक और ताकत जिसको हम कहते हैं कि पैसे का ये पावर, वो पावर इस्तेमाल करना। तो ये पावर के मुख्तलिफ अशकाल हैं जिससे अपने से कमजोर को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। अब औरत को कंट्रोल करने के लिए आपने एक नाम ले लिया, एक पितरशाही, और पितरशाही निजाम मर्द को एक ताकत दे देता है समाजी सतह पर, जिस्मानी सतह पर, कि वो औरत का इस्तेसाल करे और उस ताकत के इस्तेमाल से, और पूरी ताकत के इस्तेमाल से, जैसे हमने बात की तशद्दुद की, कि एक तो पहले तो वो जो कंट्रोल करता है वो ताकत का, वो तो हमारे पास होती है, समाजी होती है। मिसाल के तौर पर हम औरतों ने भी मान लिया, मतलब हमने या हमारी अक्सरियत ने मान लिया कि औरत कमजोर होती है, हमने मान लिया कि मर्द बालादस्त होता है, हमने मान लिया कि हम घरों में इसलिए छुप के बैठती हैं क्योंकि हमारी हिफाजत हो सके, तो हमने मान लिया कि हमें अब कुछ मर्दों को हमने ये इख्तियार दे दिया कि वो हमारी हिफाजत करें। मतलब ये तमाम चीजें हम समझ लेते हैं कि नजरियाती जो एक पावर के साथ वो कंट्रोल करते हैं औरतों को, लेकिन कुछ हमारे जैसी औरतें निकल आती हैं और कहती है कि हम ये पावर नहीं मानते, चैलेंज करती हैं, और चैलेंज जगह जगह पे करती। एक सेकेंड, जब हम चैलेंज करती हैं तो हम क्या होती हैं? गुनाहगार औरतें, बुरी औरतें, बेहया औरतें। ओवैस, बेहया औरतें, याद है क्या लफ्ज़ इस्तेमाल किया था? हयादार औरत, बेहया औरत। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करूं। देखिए, हमें जब कंट्रोल किया जाता है औरतों के लिए, सबसे बड़ा एक ट्रैप है, वो ट्रैप ये है, मर्दों के लिए नहीं है कि अच्छा मर्द और बुरा मर्द, बच्चों मर्दों के लिए कभी नहीं, हयादार मर्द और बेहया इनके लिए नहीं है। औरतों के लिए जब हमने कहा कि उसकी समाजी किरदार की जब तश्कील होती है, जब सिर्फ की तश्कील होती है, उसमें ये चीज होती है कि अच्छी औरत और बुरी औरत, और ये अच्छी औरत और बुरी औरत का वाहिद कॉन्सेप्ट है जिससे हम औरतें खौफजदा होकर इस पावर पे हम खुद जो है अपने आप को सरेंडर कर देती है। औरतें मतलब अपने आप को जब पेश करती है तो वो इसलिए करती है कि वो बुरी औरत कहलाना नहीं चाहती, वो समझती है। और अच्छी औरत का कॉन्सेप्ट औरतों ने नहीं दिया, अच्छी औरत का कॉन्सेप्ट आपको समाज देता है। मिसाल के तौर पर शीमा जी ने आपको बताया कि बॉडी को ऑन करना, अपने जिस्म को ऑन करना, उसको खुला रखना, उसको आप अपना समझते हुए कि उस पे शर्म महसूस करने के बजाय उस पे अगर आप फख्र करें तो आप तो अच्छी औरत नहीं होगी। आपने अगर बोलना शुरू कर दिया घर में और ऊंची आवाज में, आपकी आवाज अगर भाई की आवाज दिखती आगे, तो फिर आप तो अच्छी बेटी भी नहीं है। और अगर हाँ, फिर तो मेरा गाना आपके बाहर निकलेगी तो फिर बेहया होगी कि औरतों के लिए महदूद दायरे हैं एक फैमिली का। तो फैमिली में अगर आपने ये आपने अपनी मर्जी कर ली तो आप अच्छी बीवी नहीं है, आप अच्छी माँ नहीं है, आप अच्छी बेटी नहीं है, कुछ कहने। ये जो एक तस्वुर है, एक कॉन्सेप्ट है, माँ, बहन, बीवी, बेटी, और यही चार रिश्ते इज्जत और एहतराम के लायक हैं। औरत की ना कोई इज्जत है ना एहतराम है, और अगर मैं उसका बाप हूं, भाई हूं, शौहर हूं या बेटा हूं, तो मेरी इज्जत
اس کے جسم کے اندر پنہا ہے، جیسا کہ محترمہ شیما کے مانی صاحبہ نے فرمایا۔ مردوں کے رشتوں کی عزتیں اور ناموس اور احترام، آنر، ڈگنیٹی عورتوں کے جسموں سے منسلک ہیں اور پنہا ہے۔ یہ کتنی غلط سوچ ہے۔ میرا جسم، میری مرضی۔ میں پڑھوں گی یا نہ پڑھوں گی، یہ میری مرضی۔ میں کتنا پڑھوں گی اور کہاں تک پڑھوں گی، یہ میری مرضی۔ میں کام ملازمت کروں گی یا نہیں کروں گی، یہ میری مرضی۔ میں شادی کروں گی یا نہیں کروں گی، یا کب کروں گی یا کس سے کروں گی، یہ میری مرضی۔ میں اولاد پیدا کروں گی یا نہیں کروں گی، یہ میری مرضی۔ اگر کروں گی تو کب کروں گی، یہ میری مرضی۔ اگر کروں گی تو کتنی کروں گی، 1 2 3، اوپری 3 نہیں 2۔ یہ میری مرضی، یہ میری مرضی۔ تم ہوتے کون ہو؟ بدر شاہی نظام میں اپنا حکم چلانے والے، اپنی جاگیرداری، اور اس کا بہت گہرا تعلق ہے جاگیرداری نظام کے ساتھ، قبائلی نظام کے ساتھ، سرداری نظام کے ساتھ، چودھریوں کے نظام کے ساتھ، خوانین کے نظام کے ساتھ، میروں سرداروں کے نظام کے ساتھ۔ Not you, you are different. You are very different. We are not talking about you. میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ وہ وقت گزر گیا، وہ وقت بالکل گزر گیا۔ وہ وقت گزر گیا جب ہم گناہگار عورتیں ہماری کیا جبہ کی تمکنت سے روک کھائیں اور سر جھکائیں؟ نہیں، نہ ہم روک کھاتی ہیں نہ ہم سر جھکاتی ہیں۔ تم نے جبہ پہنا ہو یا کچھ بھی پہنا ہو۔ محترمہ کشور ناہید صاحبہ کی مشہور و معروف نظم، کسی کو بعد میں اگر شوق ہوگا تو میں دکھا دوں گی آپ کو، آپ فوٹوگراف لے ہی دے لو۔ بس اتنا کہنا ہے کہ اب کرنا کیا ہے۔ میں ذرا سا 1 منٹ پھر آپ وائڈی مت کیجیے۔ اب کرنا کیا ہے؟ کیونکہ ہم لوگ ماتم تو بہت کر لیتے ہیں، لیکن حل کی طرف، تجاویز کی طرف بہت کم جاتے ہیں۔ سب سے پہلے مردوں کو شانہ بشانہ اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوگا۔ جب تک مرد عورتوں کے ساتھ اور ٹرانسجینڈرز کے ساتھ نہیں چلیں گے تو یہ گاڑی کہیں نہیں جا رہی، یہ چلے گی ہی نہیں۔ کسی صاحب نے ابھی وہ چلے گئے کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی کہ کیوں چلے گئے۔ میں بوڑھی ضرور ہوں لیکن بے وقوف نہیں ہوں، ڈاکٹر کلور صاحب کو کہا ان کے لیے بس اتنا کہ خرچ کم جہاں پاک اچھا ہے۔ اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ہماری لڑائی مردوں کے ساتھ نہیں ہے، ہماری لڑائی اس ظالم سماج کے ساتھ ہے جس نے ہمیں مرد اور عورت اور ٹرانسجینڈرز کی تفریق میں دشمن بنا دیا۔ ہم سماج سے لڑیں گے، نظام سے لڑیں گے، اور یہ کس طرح ہوگا؟ یہ ہماری نصاب اور ہماری تدریسی کتب، کریکولم، ٹیکسٹ بکس، ٹیچرز ٹریننگ کے ذریعے ہوگا۔ میری تو عمر گزر گئی، بچوں اور بچیوں اور ٹرانسجینڈرز کو سکھانا ہے کہ آپس میں باہمی طور پر عزت اور احترام کے ساتھ کیسے رہنا ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہیں، عزت اور احترام، ڈگنیٹی اینڈ ریسپیکٹ اینڈ آنر، اور شیم کسے کہتے ہیں؟ ڈس آنر۔ یہ جو قتل ہوتے ہیں یہ غیرت کے نام پر قتل نہیں ہوتے، یہ بے غیرتی کے نام کے قتل ہوتے۔ There is no honor in killing. There is no honor in killing. تم کتنے چھوٹے انسان ہو جس نے اپنی ماں کو، اپنی بہن کو، اپنی بیوی کو، اپنی بیٹی کو اس لیے قتل کر دیا کہ وہ اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی۔ بہت چھوٹے ہو تو
आखिर में मैं भी थोड़ी सी बात कर लूं, मुझे पता नहीं है कि हमारा टाइम कितना है बोलने का, क्योंकि हम दोनों ही ऐसे हैं कि पूरा दिन बोल सकते हैं दोनों। तो ठीक है, बात करते हैं। बात ये है कि ये बात ये है कि अब ये जैसे तारा ने कहा कि शाना बशाना चलना पड़ेगा। ये औरतों के लिए खास तौर पर वो औरतें जो खवातीन के हुकूक की बात करें, जिस तरह से अच्छी औरत और बुरी औरत का एक मफरूजा सा फैला दिया गया है, इस तरह से एक और मफरूजा है जो आजकल चलता है, और वो आजकल ये चलता है कि जो औरतें औरतों के हुकूक की बात करती है वो चूंकि अच्छी औरतें नहीं है, इसलिए हम उनको किस तरह हम उनके पीछे या उनकी बात सुन सकते हैं। बात ये अच्छी औरत वाली और जो औरतों के हुकूक की बात कर रही है, वो उनके लिए ये मशहूर कर दिया जाता है कि वो मर्दों के खिलाफ है। तारा अब्दुल्ला को मर्द नहीं पसंद, अमर सिंधु मर्दों के खिलाफ है, इसलिए लिहाजा वो जो भी बात करेंगे हमने उनकी बात नहीं सुनी। तो एक तो ये मफरूजा भी जो है, हाँ, ये बात हमने कभी नहीं कही कि ये मफरूजा है, मैं यही कह रही हूँ ना कि ये मफरूजा है और ये प्रोपेगेंडा है कि औरतों के नाम पर इस तरह की बात की जाए कि वो मर्दों के मुखालिफ है। वो मर्दों के मुखालिफ नहीं है, वो बिदरशाही के मुखालिफ है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बिदरशाही औरत को गुलाम नहीं बनाती, वो मर्द को भी इनह्यूमन बनाती है। मर्द को जिस तरह से हम जहरीली मर्दानगी मिसाल उसको कातिल बनाती है, मिसाल उसको बेरहम बनाती है, मिसाल उसको जालिम बनाती है। ये बिदरशाही है कि बाप अब इस गैरत के सोगाल गैरत के नाम पर बेटी को कत्ल करे। ये बिदरशाही का दिया हुआ, ये सिर्फ का दिया हुआ किरदार है कि बाप को इस तरह से होना चाहिए कि अगर उसकी बेटी अपनी मर्जी से कोई चीज कर रही है तो उस बाप को बेगैरत कहा जाए, और वो अपनी बेगैरती का लेवल मिटाने के लिए वो कातिल बन जाए। तो ये बिदरशाही से निजात सिर्फ औरतों की नहीं है, वो मर्दों को भी आजाद करती है। और ये बिदरशाही औरत और मर्दों को जो है करती है, आजाद करती है। लिहाजा जो औरतों के हुकूक की जो भी जंग है वो औरत और मर्द की आजादी की जंग है, इसलिए दोनों को साथ लड़ना पड़ेगा। एक आखिरी बात करनी है। हमें कहा जा रहा है कि हम सवाल जवाब और गुफ्तगू के सेशन को शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक बात करनी पड़ेगी, और वो ये है कि मर्दों के साथ शाना बशाना हम उस वक्त चल सकते हैं इज्जत और एहतराम के साथ जब बाहिनी इज्जत हो, बाहिनी एहतराम हो। आप मेरी इज्जत करें, मैं आपकी इज्जत करूं, और इसके लिए एक चीज करनी बहुत जरूरी है, और वो ये है जिरगे और पंचायतों का निजाम खत्म करो। जिरगे और पंचायतों का निजाम खत्म करो, क्योंकि ये अमीर को गरीब के ऊपर फौकियत देती है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ जस्टिस करती है, जिसका मतलब है कि औरतों को इनजस्टिस मिलती है। हमें कभी भी अदल और इंसाफ नहीं मिल सकेगा जब तक जिरगे और पंचायतें कायम हैं, क्योंकि वो एक इम्बैलेंस ऑफ पावर, इम्बैलेंस ऑफ जस्टिस है। तो सबसे पहली चीज उनको खत्म करना है। अब आप प्लीज सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कीजिए। Does anybody have a question? I want to say something. जी जी, इनको माइक दे दें। मैं एक छोटी सी दो सिर्फ 1 मिनट की बात शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से। एक तो ये है कि आप सब ने औरत मार्च का नाम सुना होगा। What has औरत मार्च done? औरत मार्च ने औरतों की हुकूक और फेमिनिस्ट तौर को घर घर में पहुंचा। Every home now talks, whether they like it or not, agree करें हमसे या ना करें, that is not the point, but the dialogue has started. तो ये एक अहम चीज है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रही हूँ, मैं समझती हूँ कि अगर यहाँ इस मुल्क में कोई इनकलाब आएगा तो उसे औरतें ही ला सकती। सदियों का जो ऑपरेशन रहा है वो औरतें
उठाती आ रही है। और इस वक्त हम देख रहे हैं, मैं ये समझती हूँ एक इनकलाब चल रहा है इसमें, और वो है जो बलोच और केला young Baloch women, their struggle for missing persons, for enforced disappearances, मर्द उन लड़कियों के पीछे इस वक्त बलूचिस्तान है। This is truly a revolution that is happening in Pakistan. I just want to स्टूडेंट्स को करते हैं। Hello, my name is Nirmala, and so first of all, thank you so much for coming here, and thank you so much for saying whatever you said. It was much needed. And मेरा सवाल ये है कि जब हम शेख अयाज की पोइट्री पढ़ते हैं या जब हम राशिद मोलाई की पोइट्री पढ़ते हैं, तो उसमें वो बातें हैं जो कि उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच थी उस टाइम में। तो मेरा दिल में ये सवाल मौजूद होता है कि क्या हमारे दादा परदादा के दौर में ज्यादा टॉलरेंस थी, उनको ज्यादा फ्रीडम ऑफ स्पीच थी इस टाइम से? जब पूरी दुनिया जो है आगे बढ़ रही है, हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच कम क्यों है? बिल्कुल, तो इससे आपका क्या ओपिनियन है? आपकी बात Does anybody else have a question? जी इनका येलो मैडम आपने अभी तक जो भी कहा, सॉरी उतनी अच्छी नहीं है, अगर कोई वर्ड से दरअसल हो जाए, विद ऑल रिस्पेक्ट, बट मैडम मुझे ऐसा लगता है कि अब आज के दौर में वुमेन एंड वुमेन की जो है ना वो दुश्मन है, और वो ही उससे डेवलप का भी एहसास लाती। फॉर एग्जाम्पल I have an example. मेरी अभी बेबी है, I guess hardly 2.5, मैं अभी मैटरनिटी से आई हूँ, and literally मैं पूरे आवर्स भी देती हूँ, मैं शॉर्ट आवर्स भी गई हूँ, तो मुझे आके ये सुनना पड़ता है, यार तुम कैसी माँ, जालिम माँ, अपनी बच्ची को छोड़ कर रही हो यार। इमेन आई नो मेरी हस्बैंड की बहुत सपोर्ट है, बट वो मुझे मर्दों से कुछ ऐसा नहीं सुनने को मिला जितना औरतों से सुनने को मिलता है कि ये आप कैसे करती है। मुझे ऐसा लगता है कि मर्द तो है, लेकिन औरतों को भी साफ अच्छा, पहला तो सवाल था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। एक और ताकि वो कनेक्ट कर लेना। इसका जवाब दे दें फिर भी एक बस वो आखिरी हाँ जी, तीसरा सवाल। हेलो, तो मेरा नाम उमैस खान है और मैं बहुत सपोर्ट करता हूँ मैंने क्वालिटी को। मैं अपनी क्लास छोड़ कर आया था इससे सर को, लेकिन जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वहाँ पर मुझे ऐसा मिला नहीं। यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि इक्वालिटी के चक्कर, इक्वालिटी की कर्टन के पीछे जो बैक साइड हो रहा है वो फेमिनिज्म को ज्यादा प्रमोट किया है, मतलब औरतों को ऊपर रखा जा रहा है। तो कंपेनियंस एंड नॉट कॉम्पिटिटर्स। तो मैंने जो रिसर्च पढ़ी थी वहाँ पे क्या जा रहा था कि जो फैक्ट्री वर्कर्स होते हैं वहाँ पे वुमेन को तो एक्सप्लॉइट किया जाता है, लेकिन वहाँ पे जो डेथ होती है वहाँ पे मर्दों की होती है। अभी बलूचिस्तान में जो ऑनर किलिंग हुई, एक ऑनर किलिंग हुई थी, उसमें लड़की और लड़की को दोनों मारा था, लेकिन आपने वैसे लड़की का मेंशन किया, लड़की का नहीं किया। तो जब मर्दों की बात आती है तो फिर सब खामोश हो जाते हैं। पहला जो सवाल था वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में था कि हमारे जो मतलब जो पहले के लोग थे, मतलब एक शायर खयास का जिक्र आया और ये था कि उनको क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा थी और हमारे पास नहीं है। तो मैं कह सकती हूँ कि आपकी बात इस हद तक सही है कि उस वक्त फ्रीडम ऑफ स्पीच ज्यादा थी नहीं, लेकिन वहाँ पर लोगों में इतनी हिम्मत थी कि वो जबर के साथ लड़ने के लिए खड़े हो जाते थे। और अब जो है जबर के साथ लड़ना जो है वो लीडरशिप या वो करार हो सकता है कि कम हुई हो, लेकिन मैं उसके साथ ये भी कहना चाहूंगी कि अब जो है हमारे पास बात करने की स्पेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वो
वर्चुअल भी है और वो सामने वाली भी है। पहले सिर्फ एक लिखा हुआ लफ्ज होता था, आज हर आदमी बोल सकता है, हर खातून बोल सकती है, जिसके पास मोबाइल है वो बोल भी सकता है और बात कर भी रहा है। ये भी नहीं है कि वो कर नहीं रहा। तो दोनों मानव में इसको देख सकते हैं कि बात पहले भी हो रही थी, बात अब भी हो रही है। अब चूंकि हर एक बात कर रहा है तो आपको लग रहा है कि शायद वो जो आइकन उस वक्त के थे वो अभी नहीं है। हाँ जी, रिवर्स ऑर्डर में मैं जवाब दूंगी, ठीक है। जिन साहब ने फरमाया कि जो आपकी तवक्कुआत थी उस पर हम लोग पूरे नहीं उतरे, तो असद एहतराम मुआज़रत के साथ लफ्ज़ आपसे मुखातिब हूं। तशरीफ रखिए। ये जो लफ्ज़ फेमिनिज्म है ये गाली नहीं है, चाहे मर्द या औरत इसको गाली समझे, ये गाली नहीं है। इसको समझने की जरूरत है कि फेमिनिज्म का मतलब क्या है। ये अमेरिका या यूके या ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या यूरोप से इंपोर्ट किया गया कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की नज़्में पढ़े, सेवन प्रिंसेसेस के बारे में पढ़े, वो अगर फेमिनिस्ट नहीं थी तो क्या थी? खदीजा अगर फेमिनिस्ट नहीं थी तो क्या थी? बीबी फातिमा अगर फेमिनिस्ट नहीं थी तो क्या थी? बीबी ज़ैनब अगर फेमिनिस्ट नहीं थी तो आज उनकी नस्ल कैसे चल रही है? She was the world's biggest and first feminist. फेमिनिज्म को समझने की जरूरत है, बोलने से पहले पढ़ने और लिखने की जरूरत है। और जहां तक ताल्लुक रहा, मैडम आप अगर आप आपस में गुफ्तगू करेगी तो आपके सवाल का जवाब मैं तो दे दूंगी, आप तक पहुंचेगा नहीं। सवाल का जवाब ये है, सवाल ये था जिन्होंने नहीं सुना, औरत की बदतरीन दुश्मन है। मैडम आप एक औरत हैं, बेटी हैं, बहन होंगी, बीवी हैं, वालिदा हैं। आपको ये ताना दिया गया कि तुम तो काम करती हो तो तुम अच्छी मां नहीं हो। जो आपको ये ताना दे रहे हैं उनसे छोटी सी एक इल्तिजा है, मेरी तरफ से आपके तवज्जुह से पहुंचा दीजिएगा, प्रोफेसर अमर साहिबा के तरफ से भी पहुंचा दीजिएगा कि भाई साहब, बहन साहिबा, कोई भाई साहब, बहन साहिबा, ख्वाजा सिराज साहिबा साहब, कोई भी हो, हंसने की बात नहीं है, देख सिर्फ आप बराए मेहरबानी, बराए करम 10 बस्ता आपसे इल्तिजा है कि इंडियन और पाकिस्तानी सोप ऑपरा ड्रामा देखना बंद कर। हमारा जो है उस बच्चे ने जो सवाल किया, आपने कहा कि हम जिक्र करते हैं जो जंगों की या जो मर्दों के, औरतों का जिक्र कर रहे हैं, मर्दों का नहीं कर रहे। मैं आपसे छोटी सी गुजारिश करूंगी कि वुमेन सेक्शन फोरम हैदराबाद में जारी थी। पिछले 5 साल में जो औरतों पे तशद्दुद हुआ, तशद्दुद पे हमें ज्यादा टाइम नहीं मिल सका कि बात करें, तशद्दुद हुआ है, उस फिगर्स में बताते हैं कि सिर्फ सिंध के अंदर रोजाना 3 औरतें कत्ल होती हैं। शेम! दूसरी मैं आपको बता दूं कि ये अफगानिस्तान की लड़ाई, आपकी इराक की लड़ाई, इन लड़ाइयों के अंदर भी रोजाना और मरने वाले औरतों की तादाद ये नहीं है जो कत्ल की, जो हमारे घरों में हमारे सामने इस सिंध के छोटे से खित्ते में रोज 3 औरतें मर रही है, लेकिन हम उस पे सेंसिटाइज नहीं है और हम उनके कत्ल को कत्ल नहीं समझ
अंदर यही फर्क है कि हम उसको नॉर्मलाइज कर सकते हैं, कर देते हैं, और फेमिनिस्ट उस सवाल को लेकर खड़े हो जाते हैं। फेमिनिस्ट पूछते हैं कि आप ये जो तशद्दुद है औरत पर औरत होने की वजह से, कारोकारी में मर्द और औरत दोनों बनते हैं बाज़ औक़ात, लेकिन कभी आपने ये सोचा है, औरत सवाल उठाती है कि मर्द को उनके भाई, उनके अपने रिश्तेदार नहीं मारते, औरत को तो अपना भाई, अपना बाप, अपना रिश्तेदार मारता है, जबकि इसलिए औरत में तशद्दुद और मर्द में तशद्दुद दो मुख्तलिफ चीजें हैं कि औरत अपनों के हाथों मरती है और कारोकारी के अंदर दुश्मन, अगर जंग की बात करें तो जंग में दुश्मन होता है, लेकिन फेमिनिज्म कहती है कि आपके घर के अंदर आपका भाई, आपका बाप, आपका शौहर, आपका कातिल कैसे बन जाता है उस औरत का। तो ये थोड़ा सा फर्क है, उसको समझने की जरूरत है कि आप एक कातिल को जो उसके घर में भी है तो उसके साथ इस सवाल पे बात किए बगैर किस तरह से आप रह सकते हैं। तो ये मेरा कहना है कि आपको दोबारा से सोचने की जरूरत है, और जब सिर्फ में इस किस्म की कोई खबर आए तो आप उसको देखें कि ये और ये क्यों कत्ल हो गया। लास्ट क्वेश्चन पर एक टाइम है, लास्ट क्वेश्चन के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? वैसे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें सुना और बर्दाश्त किया। बर्दाश्त किया।